Hello, good morning students. Myself Umashri Mathur from Kohinoor Kids Secondary School Academy. According to timetable, today is the day of EVS in class 5th, and today we will be completed our chapter 13. Let's play with water. Dear students, in our previous video of chapter 13, Let's Play with Water, we read about solubility of substances in water, substances that soluble in water, fast and slow, dissolution and soluble and insoluble things in water. And today we will read and discuss about the substances which sink in water and which floats on water. Dear students, as you all know that water is universal solvent because many things can be mixed in water. Things which doesn't dissolve in water are oil, stone, etc. But by performing, think and write the answers of the following. By performing all of the above activities, what have you understood about the solubility of the substances? Write down in your notebooks. Until now, we have seen that some substances are soluble in water and some are insoluble. Some dissolves slowly and some dissolves at a faster rate. In hot water, the substances dissolves very fast in comparison to cold water, and this dissolutions because faster by stirring. You must have seen that some objects keep floating on the surface of water in ponds, lakes, etc., whereas some things sink in water. Let us see how do the things float or sink in the water. डियर स्टूडेंट्स, इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बाद हमने ये अंडरस्टूड किया कि थिंग्स होती हैं, कुछ थिंग्स हैं जो वाटर में सॉल्युबल होती हैं, जबकि अदर होती हैं वो इनसॉल्युबल होती हैं. अनटिल नाउ, अब तक हमने देखा कि कुछ सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कुछ इनसॉल्युबल होते हैं. कुछ जो है वाटर में डिज़ोल्व स्लो होते हैं, जबकि अदर हैं वो वाटर में फास्ट डिज़ोल्व होते हैं, यानी पानी में तेज़ी से घुलते हैं. इसके अलावा हमने एक और ऑब्जर्वेशन किया कि हॉट वाटर में जो है सब्सटेंसेस बहुत ही फास्ट डिज़ोल्व होते हैं कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में, और जो डिज़ोल्यूशन होता है वो फास्टर होता है जब हम वाटर को स्टिर करते हैं, यानी कि पानी में सब्सटेंस को डाल के अगर हम उसको घुमाते हैं तो वो जल्दी ही सब्सटेंस उसमें वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है. डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो जो हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हैं वाटर के अंदर फ्लोट होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो कि वाटर में सिंक हो जाते हैं. आइए हम देखें कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो वाटर में फ्लोट और सिंक होते हैं. Dear students, as we read now that water is a universal solvent because many things can be mixed in water. Things which doesn't dissolve in water are oil, stone, etc. जैसा कि हमने अभी रीड किया कि वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है क्योंकि इसमें कई चीज़ें वो मिक्स हो जाती हैं. वो थिंग्स जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती वो हैं ऑयल, स्टोन, एट्सेट्रा. इसके अलावा जो हैं
यहाँ हम एक टेबल में देखेंगे, इस इमेज में ऑब्ज़र्व करेंगे थिंग्स जो कि मिक्स होती है वाटर में, वो हैं शुगर, साल्ट, कलर, लेमन एटसेट्रा, एंड थिंग्स डज नॉट मिक्स इन वाटर आर सैंड, वैक्स, ऑयल एंड stones, chalk powder, etc. Do this activity. Dear students, here is the time for activity for you. Bring a bucket filled half with water in your class. Everyone collects a few things together like a piece of chalk, pen, eraser, a bite of paper, matchstick, sponge, key, coin, a plastic bottle filled with water, etc. Put these things one by one in the bucket water and see which objects float in water and which sinks. Make a table in your notebook and write down your observation. Dear students, as you know, as we read, we observe that some things floats on water and some sinks in water. तो आपको क्लास में एक जो बकेट है वो वाटर से हाफ फिल करके लानी है। हर स्टूडेंट को जो है कुछ थिंग्स कलेक्ट करनी है, जैसे पीस ऑफ चॉक है, पेन है, इरेज़र है, एक पेपर का बाइट है और मैच स्टिक है, स्पॉन्ज है, की है, कॉइन है और प्लास्टिक बॉटल है। इसमें इसको आपका क्या करना है कि ये इन चीज़ों को एक एक करके आपको जो है वाटर के अंदर बकेट में डालते जाना है। इन थिंग्स को जब आप वन बाय वन बकेट के वाटर में डालेंगे तो आप देखेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वाटर में सिंक होते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट हैं वो वाटर में फ्लोट होते हैं। आपको फिर एक टेबल बनानी है ऑब्जर्वेशन के बाद कि कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वाटर में सिंक हुए हैं और कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वाटर में फ्लोट होते हैं, और अपने ऑब्जर्वेशन आपको राइट करने हैं। तो यहाँ पे हम एक टेबल देखेंगे। अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, थिंग्स दैट सिंक इन वाटर इमीडिएटली आर piece of chalk, pen, key, coin, and things that float on the surface of water are a bit of paper, matchstick, plastic bottle, not plastic bottle, sponge, etc. And things that floats initially but sink later are sponge and pen and match stick. वो चीज़ें जो पहले तो वाटर पे फ्लोट होती रहेंगी और बाद में जो है वो वाटर में डूब जाएंगी। उनमें है उनमें है स्पॉन्ज, ए बिट ऑफ पेपर एंड मैच स्टिक एटसेट्रा. Dear students, here is another activity for you. When does an object floats and when does it sinks? So let's start. Take a bucket filled with half with water. Put a ball pen with a cap fitted on it in the water. See whether it floats or sinks. Now remove its cap and put the pen and the cap separately in the water. What happens now? This time remove its refill also and now again put the pen, its cap and its refill separately in water. Now see what things float in water. Put the pan in different positions like straight,
incline, etc. in water, and now observe it. Write down your experiences in the notebook. So dear students, we do एक activity here कि हमें देखना है कि कब जो हैं ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट होते हैं और कब वे वाटर में सिंक होते हैं। हम एक जो है हाफ फिल्ड जो बकेट है वाटर की वो लेंगे, उसमें एक बॉल पेन को कैप के साथ में इसमें डाल देंगे वाटर में, और हम देखेंगे कि जो क्या ये वाटर में फ्लोट या सिंक होता है। तो इसका आंसर है कि जब हम पेन को कैप फिट करके और वाटर में पुटअप करते हैं तो वो फ्लोट होता है, जबकि अब हमें इसका कैप हटा देना है और पेन को और कैप को सेपरेटली हम वाटर में डालेंगे। तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो पेन है वो वाटर में सिंक हो जाता है, बट कैप है वो वाटर में फ्लोट होती है। नेक्स्ट टाइम हमें करना है कि हमें जो है इसकी रिफ़िल को भी इससे अलग कर देना है और वापस पेन, कैप और जो रिफ़िल है उसको सेपरेटली वाटर के अंदर डाल देना है। नाउ सी व्हाट थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर। अब आपको देखना है कि कौन सी थिंग्स हैं वो वाटर पे फ्लोट होती हैं। तो इसकी रिफ़िल है वो इसमें वाटर में सिंक होती है, कैप है वो फ्लोट होती है, और जो एम्प्टी पेन रह गया वो भी वाटर में सिंक हो जाता है। अब आपको पेन को है डिफरेंट पोजीशंस में जो है वाटर के अंदर पुटअप करना है। जैसे स्ट्रेट तो उसको आप पुटअप कर देंगे, इंक्लाइन यानी सीधा उसको पुटअप करेंगे वाटर के अंदर, फिर आप उसको इंक्लाइन यानी कि तिरछा भी जो है वाटर के अंदर पुटअप करेंगे। और अब आप इसको जब ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं कौन सी चीज़ फ्लोट्स होती हैं और कौन सी नहीं होती, और जो है अगर हम स्ट्रेट पुटअप करें या इंक्लाइन पैन को पुटअप करें वाटर के अंदर तो इसके क्या रिज़ल्ट होते हैं। व्हाट इज़ अप एंड व्हाट इज़ डाउन। टेक ए स्मॉल ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक बॉटल, फिल इट हाफ विद वाटर, put 8 to 10 drops of oil in it and close it tightly. Now shake it properly. What do you see inside the bottle? Now keep the bottle stable for some time and see what happens. तो सो डियर स्टूडेंट्स, कौन सी चीज़ें अप रहती है और कौन सी चीज़ें डाउन जाती हैं, इसको अंडरस्टूड करने के लिए हम यहाँ एक शॉर्ट टिप देखेंगे। एज वी रीड, जैसा कि हमने रीड किया कि हम एक बॉटल लेकर उसके अंदर 8 से 10 ड्रॉप हैं वो हम इसके अंदर जो है ऑयल की पुटअप करेंगे। तब हम रिज़ल्ट देखेंगे कि जब हम इसको शेक करेंगे तो हम हमारा एक्सपीरियंस ये होगा कि जो वाटर है जो उसके अंदर हमने 8 to 10 ड्रॉप्स हैं वो ऑयल की पुटअप की हैं, उसको टाइटली क्लोज करके जब हमने इसको शेक किया प्रॉपरली तो हमने देखा कि कुछ टाइम के लिए जो है हमें ऐसा लगता है कि जो ऑयल है वो वाटर के अंदर मिक्स हो चुका है। लेकिन हम जब वाटर को स्टेबल करते हैं, यानी जब वाटर का जो ऑयल और जो पानी वाला जो सिस्टम है जो हमने शेक किया था उसको अगर हम रोक देते हैं और जब हम उसको ध्यान से देखते हैं कुछ टाइम बाद तो हम देखते हैं कि जो ऑयल है वाटर में मिक्स हुआ था वो वापस है वाटर पे फ्लोट होने लग गया। Why do objects float or sink in water? So dear students, here we discuss about it. Relatively density 1, relatively density 2 and relatively density. If density of an object is more than water, then object sinks in water. अगर जो वाटर की जो डेंसिटी है वो ऑब्जेक्ट से मोर है तो जो ऑब्जेक्ट है वाटर में सिंक हो जाता है। हमारी जो सेकेंड वाली जो डेंसिटी के बारे में जो हम रीड करेंगे वो है इफ़ डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मोर देन वाटर। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है देन ऑब्जेक्ट्स फ्लोट बट इट इज़ फुल सबमर्ज। तो ऑब्जेक्ट फ्लो होगा लेकिन ये फुल सबमर्ज्ड हो जाएगा।
रिलेटिवली डेंसिटी, इफ़ डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मोर देन वाटर, अगर जो किसी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो वाटर से बहुत ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट है वो वाटर पे फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट में जो है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो वाटर से ज़्यादा है, इसीलिए वो वाटर के अंदर सिंक हो गया। सेकंड वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें जो डेंसिटी है ऑब्जेक्ट की वो वाटर से मोर है, तो इसलिए जो है वो ऑब्जेक्ट है वाटर में फ्लोट कर रहा है, लेकिन ये वाटर में फुल सबमर्ज हो जाता है। नेक्स्ट वाली जो हमारा एक्सपेरिमेंट है कि इफ़ डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मोर देन वाटर देन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन वाटर, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वाटर से ज़्यादा होती है तो वाटर की डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट है वो वाटर पे फ्लोट करता है। वन डे when the milkman came, Meena's mother, and gave her a container to bring milk, the milkman measured the milk in liter and gave it to Meena. Meena said instantly, "Uncle, the shopkeeper weighs the sugar, rice, pulses, wheat, etc. in kilogram and then give them to us. You also weigh the milk first and then give it to me." The milkman said, "We measure liquid things like milk, oil, kerosene, etc. in liter only. Nowadays, water is sold in the sealed bottles. This is also measured in liters." एक दिन जो है जब मिल्कमैन मीना के घर पे आया तो मीना की माँ ने उसको एक कंटेनर दिया मिल्क लेने के लिए। मिल्कमैन ने जो है मिल्क को लीटर में मेज़र किया और उसको मीना को दे दिया। मीना ने देखा और उनसे कहा, "अंकल, शॉपकीपर जब हमें शुगर, राइस और पल्सेस, व्हीट ये सारी चीज़ें देता है तो वो हमें किलोग्राम में और ग्राम में मेज़र करके देता है, और आपने जो है आपने भी मिल्क का वेट किया लेकिन आपने इसका वेट है वो लीटर में किया और फिर मुझे दिया।" तो मिल्कमैन ने कहा कि कुछ लिक्विड्स होते हैं जैसे कि मिल्क, ऑयल, केरोसिन एटसेट्रा, इनको जो है हम लीटर में मेज़र करते हैं, और इन दिनों जो है ऑयल है वो भी जो है बॉटल में सील्ड जो है बेचा जाता है और इसका मेज़र भी हम लीटर में ही करते हैं। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस पैराग्राफ इज़ दैट सॉलिड्स like sugar, rice, pulses, wheat and etc. are measured in grams and kilograms, and the liquid things like milk, oil, kerosene etc. are measured in liters. तो इससे हम ये कंक्लूज़न निकालते हैं इस पैराग्राफ से कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका मेज़र किया जाता है ग्राम्स में और किलोग्राम्स में, और जो लिक्विड्स होते हैं उनका मेज़रमेंट किया जाता है लीटर्स के अंदर। Dear students, in this chapter we learnt that some substances dissolve in water and some do not dissolve. Dear students, हमने जो है इस चैप्टर में अंडरस्टूड किया कि कुछ जो सब्सटेंसेस हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं जबकि अदर हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट, सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड सम सिंक। कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट होते हैं और कुछ जो हैं उसमें सिंक हो जाते हैं। थर्ड वाला जो हमारा पॉइंट है, ऑयल डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, कि ऑयल है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है। एंड द लिक्विड सब्सटेंसेस लाइक वाटर आर मेजर्ड इन लीटर्स, और जो लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं जैसे ऑयल, वाटर एंड मिल्क आर मेजर्ड इन लीटर्स, यानी कि लिक्विड जो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे दूध, पानी, तेल,
इनका मेज़रमेंट है वो लीटर में किया जाता है। लर्नड, अंडरस्टूड एंड नाउ टेल। Make a table in your notebook and write the names of 10 things for each of the following things that dissolves in water and floats on the water and sink in water. Dear students, यहाँ आपको करना है कि आपको जो है एक टेबल मेक करनी है अपनी नोटबुक के अंदर, जिसमें कि आपको 10 ऐसे थिंग्स बतानी हैं जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं और वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती हैं। कुछ हैं जो 10 थिंग्स ऐसी बतानी है जो वाटर पे फ्लोट होती हैं, और 10 थिंग्स ऐसी बतानी हैं जो कि वाटर में सिंक हो जाती हैं। तो यहाँ आपके लिए एक टेबल है वो दी हुई है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप इस टेबल को ऑब्ज़र्व करके और अपनी टेबल मेक कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट आपको सीरियल नंबर राइट करना होगा। उसके आफ्टर आपको वो थिंग्स राइट करनी है जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं। उसके नेक्स्ट आपको वो थिंग्स राइट करनी हैं जो कि वाटर पे फ्लोट करती हैं, और नेक्स्ट जो है आपको वो थिंग्स राइट करनी हैं जो कि वाटर में सिंक हो जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अवर टुडेज चैप्टर पार्ट सेकंड ऑफ 13 चैप्टर लेट्स प्ले विद वाटर इज़ completed and also the chapter is completed. Thank you for watching my lesson plan. Read the chapter carefully and then answer your assessments. Thank you.